Good morning, my dear students. So, students, in last lecture we have finished about fruits varieties and fishery. Now I will give the notes of that both topics. तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्रूट्स और वैरायटीज़ एंड फिशरिंग के बारे में पढ़ा था. अभी वही टॉपिक का नोट्स अभी मैं देने वाली हूँ. तो जो अभी नोट्स मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ वो नोट्स आपको आपकी ईवीएस के नोटबुक में लिखना है. So the notes which I am going to provide you now, you have to write that notes in your EVS notebook. आपको वो notes आपकी EVS की notebook में लिखनी है. तो पहले मैं वन टाइम डिक्टेट करने वाली हूँ, उसके बाद आपको वो notes आपकी EVS की notebook में लिखने हैं. So question number 1. First, complete the following words. Pineapple, 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 pineapple. Second one, mango, 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 mango. Third one, apple, 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 apple. Fourth one, fisheries, 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 fisheries. Fifth one, fish, fish, fish. Question number 2, that is odd words out. First one, brinjal, apple, mango, banana. Brinjal, apple, mango, banana. So the odd word is brinjal, Brinjal. So circle the odd word brinjal. Second one, pamphlet, ravers, shell, three fish. Pamphlet, ravers, shells, three fish. So the odd word is shell, shell, shell. So circle the word shell, shell, shell. Third one, sea water, normal water, fresh water, brackish water. So the odd word is normal water. So the circle the word normal water, normalwater, water. Question number 3, that is name the following. First one, name two sea water fish. Name two sea water fish. Pamphlet and seerfish. Name two sea water fish, pamphlet and seerfish. Pomfret, pamphlet, swrfish, seerfish. Question number 2, name two fresh water fish. Name two fresh water fish. So the answer is rohu, ravas. Rohu, ravas. ROHU, rohu. ROHU, rohu. Ravas, RAWAS, ravas, RAWAS, ravas. Third one, name two brackish water fish. Canos mullet, Canos mullet, CHANOS, Canos, CHANOS, Canos, MULLET, 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 mullet. Fourth one, two fruits name. Two fruits name. Mango, apple. Mango, apple. MANGO, mango. MANGO, mango. Apple, APPLE, apple. APPLE, apple. Fifth one, name of two things made from fruits. Name of two things made from fruits. Jam, juice. Jam, juice. JAM, jam. JAM, jam. Juice, JUICE, juice. JUICE, juice. Question number 4, match the following. First one is pineapple, PINEAPPLE, that is option E. First one is option E, pineapple. Second one is banana, BANANA, that is option D. Second one is option D, banana. Third one is apple, APPLE, apple. Option A. Third one is option A, apple. Fourth one is pamphlet, POMFRET, pamphlet. So fourth one is option C, that is pamphlet. Fifth one, it's juice, JUICE, juice. JUICE, juice. So fifth one is option B, juice. So I will repeat. First one is option E. Second one is option D. Third one is option A. Fourth one is option C. Fifth one is option B.
First one is pineapple, second one is banana, third one is apple, fourth one is pamphlet, fifth one is juice. Then question number 5th, that is answer the following. Write the use of fruits. Write the uses of fruits. Fruits are used for jam, juice, jelly, achar and etc. Write the uses of fruits. Fruits are used for jam, juice, jelly, achar, etc. Second one, where did Rohu and Ravas live? Where did Rohu and Ravas live? Rohu and Ravas live in fresh water. Rohu and Ravas live in fresh water. Third one, which fish lives in sea water? Which fish lives in sea water? Pomfret and seerfish lives in sea water. Pomfret and seerfish. Name the fish that lives in brackish water. Kenos and mullet. Kenos and mullet. Question number 6, that is draw and color. So here you have to draw and color. So one fruit name and one vegetable name is given, mango and tomato. So you have to draw mango and you have to color mango. You have to draw tomato and you have to color. So these notes you will complete in your EVS notebook. तो ये जो notes है ये आप आपके EVS notebook में complete करने वाले हो. Now further we will start with our next topic. Now students, in this lecture we are going to complete our remaining parts of do. तो आज के लेक्चर में जितने भी डू पार्ट्स के टॉपिक बचे हैं वो सब टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्न पार्ट चालू करने वाले हैं. सो डू पार्ट का जो 2.1 टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स. एरिया क्लोथिंग, उसमें प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ यानी जहाँ पे हम किस प्रकार क्लोथ बनाए जाते हैं, कैसे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो किस प्रकार कौन से स्टेप से गुजर जाते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं. तो यहाँ पे अभी आपके EVS कंबाइन बुक में पेज नंबर 81 पे उन्होंने सम पिक्चर्स दिए, थोड़े बहुत पिक्चर्स दिए हुए हैं. तो वो पिक्चर्स अभी आपको केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं और उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है. तो वो जो पिक्चर है उसमें कॉटन प्लांट का दिया है, यानी कॉटन प्लांट किस प्रकार से वो बढ़ना चालू होता है, उसकी ग्रोथ चालू होती है और फिर वहाँ से हमें कॉटन मिलता है. फिर वो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है, फिर वहाँ से कपड़ा प्रिपेयर होता है, फिर वो कपड़ा हमें शॉप में मिलता है. तो ये जो पिक्चर्स है वो सब पिक्चर्स हमें सीक्वेंस में लगाना है. सो सबसे फर्स्ट सीक्वेंस में आएगा वो है जो नीचे फर्स्ट पिक्चर है, थर्ड लाइन में जो फर्स्ट पिक्चर है. कैन यू सी, जो कॉटन का प्लान है, नॉर्मल कॉटन का प्लान है, वो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट सीक्वेंस. उसके बाद सेकेंड सीक्वेंस में जो फर्स्ट लाइन है उसमें थर्ड पिक्चर है, यानी जो कॉटन का प्लान है उसको बर्ड्स आना चालू हुए, यानी छोटे छोटे जो कलियाँ रहती है वो आना चालू हुआ है, वो सेकेंड आएगा. फिर थर्ड में जो फर्स्ट पिक्चर है सबसे, जहाँ पे कॉटन के प्लांट्स को फ्लावर आना चालू हुआ है, वो थर्ड आएगा सीक्वेंस में. उसके बाद जो सेकेंड लाइन है उसमें जो थर्ड पिक्चर है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो फ्लावर है वो फ्लावर कॉटन में कन्वर्ट हो गए, उधर कॉटन आया है, तो वो फोर्थ आएगा. उसके बाद जो फर्स्ट लाइन में सेकंड पिक्चर है जहाँ पे आपको कॉटन दिख रहा है वो फिफ्थ आएगा, यानी कॉटन प्लांट से वो कॉटन निकाला हुआ है और उसको जमा किया है, तो वो फिफ्थ आएगा. उसके बाद सेकेंड लाइन में जो फर्स्ट है, यानी जो कॉटन हमने निकाला था वो कंपनी में मैन्युफैक्चर हो गए, यानी कंपनी में उसका क्लोथ में ट्रांसफर हो रहा है, क्लोथ में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सिक्स्थ आएगा. उसके बाद लास्ट में जो लास्ट पिक्चर है जहाँ पे जो कॉटन का एक कपड़ा हुआ है वो सेवेंथ आएगा, यानी एक कॉटन जो था वो मैन्युफैक्चर होकर एक कपड़ा पूरा प्लेन बड़ा कपड़े में, मीटर वाला कपड़े में ट्रांसफ़र हो गया. और फिर लास्ट में वो कपड़े से अलग अलग टाइप्स के आउटफिट्स बनाए हुए हैं, वो है जो सेकेंड लाइन में सेकेंड पिक्चर है जहाँ पे शॉप का पिक्चर दिखाए, वो 8 आएगा. तो फर्स्ट वाला है जो कॉटन का प्लान है, देन सेकेंड वाला है जहाँ पे कॉटन्स के बर्ड चालू हुए हैं, देन थर्ड वाला जहाँ पे फ्लावर्स आना चालू हुए, देन फोर्थ वाला जहाँ पे कॉटन्स है, फिफ्थ वन में जहाँ पे कॉटन्स को कलेक्ट किया हुआ है, सिक्स में वो फैक्ट्रीज में गया है कॉटन, फिर सेवेंथ में उसका एक क्लोथ शीट रेडी है और एट में उसका शॉप में जाके कपड़ा सिलाया हुआ है. सो दिस इज द जर्नी ऑफ कॉटन फ्रॉम प्लांट्स टू क्लोथ. तो ये जो कॉटन की जर्नी है फ्रॉम प्लांट्स टू क्लोथ. सो यू विल कंप्लीट दिस इन योर EVS combined book on page number 81.
students, on page number 82, there is a story narration. I will read it, then I will explain you. Once upon a time, there was a big jungle with wild animals living peacefully. Humans started cutting trees. All animals were frightened. They decided to call for a meeting to think for a solution. Suddenly, at the meeting place, the fawn came running, filled with fright. Mother dear, what is the matter, my dear? Fawn, mother, I saw a strange animal I have never seen before. He was roaming around. After some time, he pulled out something from his body, used it on the branches of a tree, and slept under the small tree. Monkey, oh, the animal that you saw is called human being. All the animals were listening and nodding their head. Monkey, human are clever animal. They never thread from the cotton and weave clothes out of the thread. They stitch clothes from the cloth. Clothes protect human from cold, wind, rain and harsh weather. So ये जो नरेशन स्टोरी नरेशन थी इसमें क्या बोला है कि एक दिन जंगल में सब जन ऐसे एक साथ मीटिंग कर रहे थे सब एनिमल, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है हम लोग वो जंगल को काट रहे थे, तो वो सब एनिमल्स डरे हुए थे. तो यहाँ पे मंकी क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बींग्स है ना वो खुद के स्वाद के लिए हमारा जो जंगल है वो काट रहे हैं. यानी यहाँ पे मंकी ने एक बात बोली है कि ह्यूमन बींग्स इतने क्लेवर है वे कि वो खुद का जो कपड़ा है वो भी कपड़े से ही सिलते, वो खुद कॉटन लेके नहीं सिलते. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ह्यूमन बींग्स बहुत क्लेवर है और ह्यूमन बींग्स हमें प्रॉब्लम में डाल रहे हैं. तो ये मीटिंग उनकी वहाँ पे चालू थी. नाउ ऑन पेज नंबर 82 ऑन सेम पेज वहाँ पे एक्टिविटी दी गई है. वहाँ पे उन्होंने 3 बॉक्सेस दिए, दैट इज शर्ट, पैंट एंड फ्रॉक. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको शर्ट का पिक्चर ड्रॉ करना है, पैंट का पिक्चर ड्रॉ करना है और फ्रॉक का पिक्चर ड्रॉ करना है. तो जिस प्रकार मैंने ड्रॉ किया है उसी प्रकार आपको आपकी ईवीएस के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 82 पे ड्रॉ करना है. तो आपको शर्ट के बॉक्स में शर्ट ड्रॉ करना है, पैंट के बॉक्स में पैंट ड्रॉ करनी है और फ्रॉक के बॉक्स में फ्रॉक ड्रॉ करना है. तो आपको ये जो एक्टिविटी दी है वो आपको आपके ईवीएस के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 82 पे कंप्लीट करनी है. Now students, in your EVS combined book on page number 83 there is new topic that is basic stitching. स्टिचिंग यानी सिलाई करना. तो यहाँ पे अभी एक पिक्चर दिया है, उन्होंने कहा है कि विजिट टू अ क्लॉथ सेंटर स्टोर, लिस्ट द टाइप्स ऑफ क्लॉथ. तो यहाँ पे उन्होंने जो पिक्चर दिया है यानी वो क्लॉथ यानी एक शॉप, कपड़े का दुकान है. तो अगर आप कपड़े पे दुकान में जाते हो तो वहाँ पे आप क्या देखते हो, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लॉथ देखते हो, अलग अलग प्रकार के कपड़े आप देखते हो. तो कौन से टाइप्स के क्लॉथ आप वो शॉप में देखते हैं वो वहाँ पे आपको लिखने के लिए बोला है. सो फर्स्ट इज वी सी सिल्क क्लॉथ, SILK सिल्क क्लॉथ्स. देन वुलन क्लॉथ्स, WOOL वुलन क्लॉथ्स. लेदर मटेरियल, LEATHER लेदर मटेरियल. नायलॉन क्लॉथ्स, NYLON नायलॉन क्लॉथ्स. डेनिम जीन्स जैकेट, DENIM डेनिम. देन कॉटन क्लॉथ्स, COTTON कॉटन क्लॉथ्स. वेलवेट क्लॉथ्स, VLVET वेलवेट क्लॉथ्स एंड एक्सेट्रा. तो अलग अलग प्रकार के जो क्लॉथ्स है वो हम क्लॉथ शॉप में देखते हैं. तो मैंने यहाँ पे थोड़े क्लॉथ्स के नाम लिखे हैं, थोड़े मटेरियल्स के नाम लिखे हैं, वो आप अपने ईवीएस के कंबाइंड बुक में लिखने वाले. तो कौन से क्लॉथ्स के नाम मैंने लिखे हैं, सिल्क क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स, लेदर मटेरियल, नायलॉन क्लॉथ्स, डेनिम, कॉटन क्लॉथ्स, वेलवेट क्लॉथ्स एंड एक्सेट्रा. तो आप भी आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक में लिखने वाले हो. फिर उसके नीचे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है जहाँ पे उन्होंने बोला इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, रीड द फॉलोइंग टेबल्स एंड पेस्ट द सेम क्लोथ्स अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे आपको जो क्लोथ्स बोला है वो क्लोथ्स का छोटा पीस आपको जो बॉक्स प्रोवाइड किया है, स्पेसिमेन बॉक्स प्रोवाइड किया है, उधर चिपकाना है. जैसे फर्स्ट क्लोथ है, टाइप्स ऑफ क्लोथ है कॉटन क्लोथ. तो कॉटन क्लोथ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, धोती, साड़ी, टॉवेल, यूनिफॉर्म, ब्लैंकेट्स, बेबी क्लोथ्स, कैप. और टेक्सचर एंड क्वालिटी कैसी रहती है उसकी, सॉफ्ट वार्म रहती है. तो यहाँ पे आपको कॉटन क्लॉथ का छोटा सा पीस स्टिक करना है, जैसे मैंने किया वैसे ही आपको कॉटन क्लॉथ का छोटा सा पीस स्टिक करना है. उसके बाद सिल्क सैटिन वेलवेट टाइप ऑफ क्लॉथ है, सिल्क सैटिन वेलवेट. जैसे साड़ी, ड्रेस, शर्ट, ड्रामा, ड्रेपिंग में यूज़ किया जाता है, वो सॉफ्ट और शाइनिंग रहते हैं. जिस प्रकार मैंने उसका स्पेसिमेन स्टिक किया है वैसे आपको भी स्टिक करना है. उसके बाद वुलन क्लॉथ, स्वेटर, शॉल, मफलर, सॉक्स.
जो रफ, सॉफ्ट और वार्म रहता है, जिस प्रकार मैंने चिपकाया है वैसे ही आपको वुलन क्लॉथ का चिपकाना है। फिर डेनिम क्लोथ्स यानी जैकेट्स एंड जीन्स रफ और वार्म रहती है, जैसे जीन्स का कपड़ा मैंने चिपकाया है वैसे आपको भी चिपकाना है। तो आप आपके ईवीएस के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 83 पे ये एक्टिविटी करने वाले हो। नाउ स्टूडेंट्स, इन योर ईवीएस कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 84 एंड 85, तो ये जो टॉपिक है ये खाली प्रैक्टिस टॉपिक है। तो ये इसमें क्या करना है आपको, डॉल मेकिंग। तो यहाँ पे आपको जैसे उन्होंने स्टेप प्रोवाइड किए वो स्टेप फॉलो करके आपको घर पे डॉल बनानी है। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, तो आप ये आपके घर पे भी ट्राई कर सकते हो। सो यू विल ट्राई दिस डॉल मेकिंग एट योर होम। सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। तो ये जो स्टेप्स प्रोवाइड किए उन्होंने पेज नंबर 84 और 85 पे, वो लर्न करके आपको खुद को आपके घर पे डॉल बनानी है। सो दैट इज योर होमवर्क। नाउ स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 86 देयर इज कॉयर वर्क। कॉयर वर्क में आपको यहाँ पे कोकोनट ट्री दिया है और उसके यूजेस, हर एक कोकोनट पार्ट के यूजेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सो लेट्स सी। कोकोनट ट्री, कोकोनट लीव्स यूज फॉर मेकिंग ब्रूम्स, बास्केट, thatching for roofing, sun and shield, etc. Coconut shield uses fuel, making bowl, handcraft, etc. Coconut flesh used for making oil, coconut milk, etc. Coconut husks used for making rope, doormat, brushes and etc. Coconut trunk used for making boat, house to build bridge, etc. Coconut root used for making medicines, mouthwash, etc. Coconut water help in digesting, dehydrating, development strong bones, etc. तो जो कोकोनट ट्री है उसका पूरा पार्ट हम यूज़ करते हैं। कोकोनट लीव्स का हम जो झाड़ू बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फिर जो हाउस का छत है उसके ऊपर यूज़ करते हैं, फिर कोकोनट शेल है उसका भी हम बाउल के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। फिर कोकोनट जो रहता है वो उसका पानी पीते हैं हम। कोकोनट शेल से हम अलग अलग प्रकार बना सकते हैं, कोकोनट का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। फिर कोकोनट के रूट से मेडिसिन बनाए जाते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार कोकोनट के जो पार्ट्स है इसका अलग अलग प्रकार के हम यूज़ करते हैं। सो कोकोनट ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पूरे कोकोनट ट्री का हम इस्तेमाल किसी न किसी चीज़ में किया जाता है। अभी उसके नीचे हमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए, सो वो अभी हम आंसर करने वाले। व्हाट आर द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री ऑल्सो कॉल्ड। जो कोकोनट ट्री के लीव्स है उसको हम क्या बोलते हैं। सो व्हाट आर द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री ऑल्सो कॉल्ड, लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूम्स। उसको कभी कभी ब्रूम्स भी बुलाते हैं क्योंकि वो झाड़ू जैसे दिखती है इसलिए उसको ब्रूम्स भी बुलाते हैं, और उसको अलग अलग प्रकार के नाम भी रहते हैं। तो जो प्रकार का नाम आपके यहाँ बोलते हैं वो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप ब्रूम्स भी लिख सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं पे कोकोनट के जो लीव्स रहे उसको ब्रूम्स भी बोला जाता है क्योंकि वो बड़े और बहुत घने रहते हैं और वो जैसे झाड़ू जैसे दिखते हैं इसलिए उसको ब्रूम्स भी कहा जाता है। फिर व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री का दूसरा नाम क्या है। सो अनदर नेम फॉर कोकोनट ट्री इज प्लाम ट्री। अनदर नेम फॉर कोकोनट ट्री इज प्लाम ट्री, PALM, प्लाम ट्री, TRW, ट्री। हाउ मेनी कोकोनट डज द कोकोनट ट्री बेयर इन अ ईयर। सो कोकोनट ट्री पूरे साल में कितने कोकोनट्स उगाता है अपने ऊपर। सो 75। सो यू विल कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन योर EVS कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 86। उसके बाद पेज नंबर 87 पे यहाँ पे फिर से आपको एक होमवर्क है, वो है क्ले वर्क। तो क्ले वर्क क्या, यहाँ पे जो क्ले से एक्टिविटी बनाई गई है वो आपको आपके घर पे ट्राई करनी है। तो ये जो एक्टिविटी है वो आपको घर पे ट्राई करनी है। तो ये खाली आपके प्रैक्टिस के लिए ही है, तो आप ये आपके घर पे ट्राई करने वाले हो। सो पेज नंबर 87 इज होमवर्क, सो यू विल ट्राई एट योर होम। नाउ EVS कंबाइंड बुक पेज नंबर 88 दैट इज बाम्बू वर्क एंड कैन वर्क। तो बाम्बू से कौन से प्रकार के थिंग्स बनाए जाते हैं वो अभी हम देखने वाली। तो यहाँ पे उन्होंने एक पिक्चर दी है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वस्तु बाम्बू से बनाए हुए हमें दिख रही है। तो वो एग्जीबिशन है, वो आपको देखना है पिक्चर, और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए उसका आंसर आपको लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट यू सॉ एट द एग्जीबिशन। तो कौन से थिंग्स आपने एग्जीबिशन में देखा, यानी ऊपर जो पिक्चर उसमें देखा। बाम्बू बास्केट, बाम्बू पॉट, बाम्बू राइस क्लीनर, बाम्बू कबर्ड। आपने कौन सा पिक्चर थिंग्स देखा। बाम्बू बास्केट, बाम्बू पॉट, बाम्बू राइस क्लीनर एंड बाम्बू कबर्ड। सेकेंड वन, डू यू नो द डिफरेंट यूजेस ऑफ बाम्बू, मेंशन अ फ्यू। और कौन से थिंग्स आपको मालूम है जो बाम्बू से बनाए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे लिखना है। फायरवुड, हाउस
बास्केट, क्लीनिंग ब्रूम, फायरवुड, हाउसेस, बास्केट, क्लीनिंग ब्रूम। तो ये जो चीज़ है वो बाम्बू से बनाई जाती है, या बाम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पे और एक एक्टिविटी दी है, वो है ड्रॉ एंड कलर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेड आउट ऑफ बाम्बू। तो यहाँ पे आपको कितने भी ऑब्जेक्ट जितने आपको आते हैं, 2, 1, 2, 3, वो सब ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करने हैं और उसको कलर करना है। तो यहाँ पे मैंने बाम्बू पॉट, बाम्बू बास्केट और बाम्बू कप ड्रॉ किया है और उसको कलर किया है। तो आप भी इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आपको जो मालूम है वो ड्रॉ करके उसको कलर कर सकते हो। सो दिस यू विल कंप्लीट इन योर EVS कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 88. Now on page number 89, the last topic of do part, that is plantation of flower plants and ornamental plants. तो यहाँ पे उन्होंने अलग टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दिए हैं, उसका अभी आपको देखना है फ्लावर को, और उसमें से जो फ्लावर को फ्रेगनेंस यानी स्मेल आता है वो नीचे दिए हुए जो फ्लावर इज फ्रेगनेंस है वहाँ पे नाम लिखने, और जो फ्लावर को फ्रेगनेंस नहीं आता, स्मेल नहीं आता, उसको जो फ्लावर विदाउट फ्रेगनेंस दिए वहाँ पे नाम लिखने। तो कौन से प्रकार के फ्लावर दिए पहले वो हम देखने वाले हैं। रोज, चंपा, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, जैस्मीन, आम्बोली, मोगरा, क्रिस्टेलेंथम, लिली, पेरिविंकल। तो यहाँ पे फ्लावर्स विथ फ्रेगनेंस कौन से हैं? रोज, चंपा, जैस्मीन, मोगरा, लिली। एंड फ्लावर्स विदाउट फ्रेगनेंस आर हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, आम्बोली, पेरिविंकल, क्रिस्टेलेंथम। तो ये फ्लावर के नाम आप जो नीचे 2 टेबल दिए वहाँ पे लिखने वाले हो। सो यू विल कंप्लीट दिस इन योर EVS कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 89. नाउ दैट इज लास्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 90. नेम 3 फ्लावर्स दैट आर रेड, येलो, वाइट एंड पिंक। तो यहाँ पे आपको हर एक कलर के 3 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। तो रेड कलर फ्लावर में कौन से 3 रेड कलर फ्लावर्स है? रोज, हिबिस्कस, रेड सनफ्लावर। सेकेंड वन इज येलो कलर, कौन से 3 फ्लावर्स है? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, डैफोडाइल। वाइट कलर के 3 फ्लावर्स डेजी, चंपा, मोगरा। एंड पिंक कलर के 3 फ्लावर पेरिविंकल, लिली एंड ऑर्चर्ड। उसके नीचे उन्होंने बोला है सॉल्व द पिक्चर वर्ड पजल। तो यहाँ पे उन्होंने नीचे एक पजल दिया है, वो पजल आपको कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वर्ड इज डियर। तो डियर कहाँ है? उधर सर्कल करना है। तो यहाँ पे डियर है तो मैंने यहाँ पे सर्कल किया, आपको भी सर्कल करना है। सेकेंड वन इज हेन, तो आपको हेन को सर्कल करना है। फिर बफेलो, बफेलो ऑलरेडी उन्होंने सर्कल किया हुआ है। उसके बाद है रैबिट, तो आपको रैबिट को सर्कल करना है। देन इट इज गोट, तो आपको गोट को सर्कल करना है। उसके बाद है ऑक्स, तो आपको ऑक्स को सर्कल करना है। और लास्ट में है बैर, तो आपको बैर को सर्कल करना है। तो ये जितने भी एनिमल्स दिए उनको वर्ड्स फाइंड आउट करके वहाँ पे आपको सर्कल करना है। जिस प्रकार मैंने किया है उसी प्रकार आपको करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स अ होमवर्क टाइम। अभी आपका होमवर्क है। सो होमवर्क कौन सा है? तो फर्स्ट होमवर्क है, तो आप आपकी EVS के नोटबुक में वो जो नोट्स मैंने पहले दिखाए हैं वो नोट्स आप कंप्लीट करने वाले। जो नोट्स अभी मैं दिखा रही हूँ, ये 3 जो नोट्स है, 3 पेजेस है, वो आपको आपकी EVS के नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आपको EVS की कंबाइंड बुक में पेज नंबर 81 कंप्लीट करना है। EVS के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 81, फिर पेज नंबर 82 कंप्लीट करना है, पेज नंबर 82, फिर पेज नंबर 83 कंप्लीट करना है, पेज नंबर 83। उसके बाद आपको डायरेक्ट पेज नंबर 86 कंप्लीट करना है, पेज नंबर 86। देन उसके बाद पेज नंबर 88, पेज नंबर 88, देन पेज नंबर 89, देन पेज नंबर 89, और उसके बाद पेज नंबर 90, पेज नंबर 90। तो ये सब पेज और वो जो नोट्स है वो आपको EVS के कंबाइंड बुक और EVS के नोटबुक में कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको ये सब होमवर्क का फोटो खींचना है और मुझे भेजना है। सो यू विल कंप्लीट इट। थैंक यू।